Hello students, today as you can see on your screen we are towards the section 3 of our syllabus. Section number 1 children, we had the prose section, totally 8 chapters, but we have studied 6 of them because 25% of the syllabus will not be coming for your board exam. I hope so you're aware of that. You must have got an update from the classes. Children, then we had those 8 poems, out of which we have studied 6 and 2 which won't be there for your board exams, right? So we have the section 3 children and section 4. Section 3 is based on what are called as the writing skills. Children, हमारा जो section 4 रहेगा, that is totally based on novel section, right? So we'll be studying this simultaneously. Along with that, children, I have taught you in grammar, articles, and then I also discussed with you all what are called as the prepositions. So simultaneously, children will be covering up with the writing skills. Along with that, I'll teach you grammar, and then side by side we'll also be discussing about the novel section, children. Okay, so to continue here, children, regarding the summary writing, I think from lower standards we have come to this topic जहाँ पे आपको एक आध paragraph दिया जाता है and then you will be asked to write a summary of the above paragraph, right? We have studied like what is called as the note making, summarizing, or we have the pressy writing. तो various words children that we come across. तो आज हम लोग थोड़ा सीखेंगे बच्चों इस words के बारे में और फिर summary writing के steps क्या होते हैं, एक अच्छा और एक मीनिंगफुल समरी हम लोग कैसे बना सकते हैं आज के लेक्चर से आप लोगों को पता चलेगा, राइट? ओके, सो जस्ट टू बिगिन विद चिल्ड्रन, यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग के बॉक्स में दे हैव मेंशन्ड यू विद द मीनिंग ऑफ समरी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ समरी चिल्ड्रन? द समरी इज अ रिकॉर्ड इन द रीडर्स ओन वर्ड्स. क्या बोला है? रीडर्स के अपने खुद के वर्ड्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. That gives the main points. This is very important, children. Now, what are we studying here? So we are studying the main points of a piece, such as it could be either a newspaper. आप न्यूज़पेपर में से समरी लिख सकते हो चिल्ड्रन. कोई एक आध आर्टिकल होता है बच्चों लोग, एक आध लेक्चर को समराइज कर सकते हैं, या फिर it could be a passage that is given for summarizing a chapter or even a whole book. कभी कभी बच्चों हम लोग एक पूरे बुक का भी समरी लिख सकते हैं. ओके, तो सपोज चिल्ड्रन हियर दिस इज द मीनिंग दैट वी हैव फॉर समरी राइटिंग कि रीडर अपने खुद के वर्ड्स में रिकॉर्ड करता है मेन पॉइंट्स. जैसे कि किसी न्यूज़पेपर कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई लेक्चर होता है, कोई पैसेज हो सकता है, एक चैप्टर होता है, या फिर हम लोग पूरे के पूरे बुक को भी समराइज कर सकते हैं, राइट? सो चिल्ड्रन हियर फॉर द आइस ब्रेकर्स सेक्शन, discuss in pairs and guess the correct alternative for the following. To summarize means, summarize का actual meaning क्या होता है? तो उसके लिए कुछ options दिए हुए हैं. Let's see which is the most suitable for our statement. To put information in chronological order. जो information दिया है उसको हम लोग कौन से order में डाल रहे हैं चलो? Chronological order. Now you won't call that as summary, children. वो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. सो आई सपोज दैट दिस wouldn't be a right alternative for this, so we are not selecting with this one. Then children, to recapitulate the main points in selection, तो हम लोग जो मेन पॉइंट्स है उसको रिकैपिटुलेट करते हैं बच्चों लोग. आई थिंक दिस शुड बी अ प्रॉपर वन. या फिर टू इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन, आप पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें आप कुछ नया इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हो. आई डोंट थिंक दैट शुड बी सुटेबल और फेवरेबल ऑप्शन. देन टू राइट वंस ओपिनियन अबाउट सिलेक्शन, कि आपका ओपिनियन नहीं पूछा जाता बच्चों लोग यहाँ पे. इट्स लाइक व्हाट इज स्टेटेड इन द आर्टिकल, यू विल बी ओनली डीलिंग विद दैट चिल्ड्रन, राइट? यस. सो आई सपोज to summarize means to recapitulate the main points in selection. Then the type of summary that consists of a paragraph to express the main idea. तो main idea को बच्चों लोग express करने के लिए जो एक छोटा सा paragraph लिखा जाता है, तो children that should be something related to a synopsis. The other one children we are aware, outline का मतलब आप लोगों को पता है, it's a gist that is given.
report is quite different or a written summary is different. So synopsis gives you the main idea कि पैराग्राफ किसके बारे में है, इसका आपको थोड़ा आइडिया देके जाता है, right? Yes, there's one more activity, children, that we can discuss here. I think it's quite interesting. Okay, there are many ways of incorporating other writers' works into your own writing. किसी और राइटर ने चलो कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग अपने वर्ड्स में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. हाँ, तो उसके लिए चिल्ड्रन वी हैव गॉट वेरियस मेथड्स दैट वी हैव. दे डिफर अकॉर्डिंग टू द क्लोजनेस ऑफ योर राइटिंग टू द सोर्स राइटिंग. कि आप जहां से इसको लिख रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स, और जो आप लिख रहे हो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, राइटिंग. तो सोर्स के कितने नजदीक जाता है उसके हिसाब से अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो हम लोग उसको शायद यहाँ पे मैच कर सकते हैं. द फर्स्ट वन चिल्ड्रन वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट समराइजिंग. तो समराइजिंग करना मतलब क्या होता है, फिर हम लोग मीनिंग्स देख के डायरेक्टली उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो. चलो, अच्छा, इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट द मेन आइडिया बट वेरी डिटेल एक्सप्रेशन क्लियरली एंड टू द पॉइंट. मतलब हर एक पॉइंट को हम लोग इंक्लूड करेंगे यहाँ पे. दैट शुड बी समथिंग चिल्ड्रन दैट इज रिलेटेड टू जिस्ट राइटिंग. क्या होता है वो, जिस्ट राइटिंग करके बोल सकते हो उसको हम लोग. अच्छा, देन द सेकेंड वन, इट इंक्लूड्स द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर लाइन्स फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट फॉर करेक्शन, condensation and organization. That should be children something what is known as editing. क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एडिटिंग करके बोलते हैं उसको हम लोग. अच्छा, देन it includes the most essential part or the crux of the matter. क्या बोले देखो, हाँ, it includes the most essential part or the crux of the matter. अच्छा, I suppose that comes somewhere close to precis writing. अच्छा, या फिर summarizing. अच्छा, that should be something closely related to summarizing children. तो let's include the point here children. अच्छा, अगला वाला क्या देखते हैं हम लोग. It includes taking broader segment of the source and condensing it slightly so that it should be precis writing. तो हम लोग precis writing मतलब जो दिया रहता है उसका almost 1/3 बना के लिखते हैं ना. Yes. अच्छा, फिर क्या दिया है, it includes main ideas into one's own words. खुद के वर्ड्स में लिखना, तो उसको हम लोग paraphrasing करके बोलते हैं. चलो, तो ये हो गया अपना paraphrasing. And lastly children, it must be identical to the original and match the document word by word. तो किसी ने जो बोला है उसको जब हम लोग वर्ड टू वर्ड मैच करते हैं तो उसके लिए हमारे पास और एक वर्ड होता है चिल्ड्रन, एंड दैट्स समथिंग रिलेटेड टू कोटिंग, राइट. हाँ, सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग. किसी दूसरे के काम को अपने वर्ड्स में इनकॉर्पोरेट करते वक्त उसका काम और अपने राइटिंग में कितना गैप आता है, चलो उसको ध्यान में रखते हुए ये अलग अलग वर्ड्स आते हैं. समराइजिंग होता है, पैराफ्रेजिंग होता है, प्रेसी राइटिंग होता है, चलो कोट करना होता है, एडिटिंग करते हैं, फिर हम लोग जिस्ट राइटिंग करते हैं यहाँ पे, राइट. अच्छा, सो दैट वाज द आइस ब्रेकर्स सेक्शन चिल्ड्रन. नाउ we will move across children what exactly is the summary writing. Very nicely children, they have quoted some things here which will be very informative to us. Acha, to begin with, brevity is the soul of wit. क्या बोला, brevity is the soul of wit. What does that mean children? Brevity means putting it in short. So एक जैसे कुछ proverbs होते हैं बच्चों, वैसे this is one of the countless maxims coined that is invented by William Shakespeare. तो बच्चों लोग एक कहावत होती है, एक proverb आता है जहां पे विलियम शेक्सपियर ने क्या बोला हुआ है, that brevity is the soul of wit. What have they said? That brevity is the soul of wit. Brevity means children यहाँ पे putting something in short. So those people who are very witty or very intelligent or very genius, so they know how to put certain things children in शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल. तो किसी भी चीज को चलो एकदम शॉर्ट फॉर्म में कैसे यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है उसको हम लोग ब्रेविटी करके बोलते हैं. अच्छा, और ये बात किसने बोली है, दिस इज सेड बाय विलियम शेक्सपियर. सो इट इज रेलेवेंट टू स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग.
कभी कभी बात करते वक्त भी हम लोग ऐसे बहुत लंबा करके बताते हैं, फिर लिखने का रहता है तो वी कीप ऑन एक्सटेंडिंग. नो, वी नीड टू बी कॉन्साइज. सो ब्रेविटी के साथ चलो मैच करने वाला और एक वर्ड दिखेगा आपको, एंड दैट वर्ड हैज गॉट समथिंग. इधर चिल्ड्रन वी कॉल इट एज ब्रेविटी और वी ऑल्सो कॉल इट एज कॉन्सिजन. कॉन्सिजन चिल्ड्रन है फिर कॉन्साइज. कॉन्साइज मतलब पुटिंग इन शॉर्ट. अच्छा, तो व्हाट डज इट चिल्ड्रन, एक्चुअली सबका मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ में जितने भी अननेसेसरी वर्ड्स है वी आर गोइंग टू कट आउट दोज वर्ड्स. पैराग्राफ पढ़ते वक्त आपको लगता है ना कि लाइक इसके बिना भी काम चल सकता है, इसको अगर हम लोग हटा देंगे पैराग्राफ में से तो भी इसका मीनिंग क्लियर होने वाला ही है. हाँ, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग जो कट आउट करते हुए चलो उसको ब्रेविटी या फिर कॉन्सिजन बोला जाता है. टू कन्वे एनी पर्टिकुलर आइडिया. इट एम्स टू एनहांस कम्युनिकेशन बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी. रिडंडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? अननेसेसरी. जो चीज जरूरी नहीं है उसके बिना भी काम चल सकता है. ऐसे वर्ड्स को जब हटाते हैं तो उसको रिडंडेंट करके बोलते हैं हम लोग. हाँ, बट वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन कि लाइक व्हाइल यू आर डूइंग दिस वी शुड नॉट बी ओमिटिंग आउट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ध्यान रखना है कि लाइक जरूरी इंफॉर्मेशन आप ओमिट मत करना. So summary writing is one of its kind that has been described as one of the elementary principles of writing. तो चलो राइटिंग में समरी राइटिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया जाता है, इसलिए हम लोगों को बचपन से लोअर स्टैंडर्ड से समरी राइटिंग सिखाया जाता है. To speak what is required and to write what is necessary is requisite towards the development of language skills. मतलब क्या? जिस बात की जरूरत है वही बोलो और जो बात बहुत जरूरी है वही लिखो. बाकी सब चीजों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं होती. और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल्स का बोलते ना कि लाइक इट्स अ प्री रिक्विजिट. उसके बिना आप लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ब्रीफ इन रिटन एक्सप्रेशन. तो जब भी आप कुछ लिखते हो मतलब लिख के कुछ बातें एक्सप्रेस करते हो तो चिल्ड्रन यू नीड टू बी मतलब फॉलो दैट ब्रेविटी एंड यू नीड टू बी कॉन्साइज. अच्छा, टू एक्सप्रेस इन ब्रीफ द मेन पॉइंट्स ऑफ अ रिटन रिकॉर्ड. मतलब आपके पास कोई एक रिटर्न रिकॉर्ड है और आपने क्या किया, उसके मेन पॉइंट्स लिखे और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे नाम क्या देते हैं चिल्ड्रन? इट इज समरी राइटिंग स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस. लेकिन ध्यान रखना बच्चों लोग, अभी मैंने आपको सिखाया समरी राइटिंग क्या होता है और आपने फटाक से जाके वहां पे लिख दिया, ऐसे नहीं होता है. फॉर दिस चिल्ड्रन यू रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस. Okay, once or twice children, thrice, 4 times, 5 times, 10 times, and then you actually master out this art of summary writing. अच्छा, तो सवाल आते हैं कि हम लोग समरी राइटिंग करते क्यों? इसका कोई पर्पस है क्या? इसे हम लोग टाइम पास के लिए करते हैं? बस सर ने बता दिया हमने किया, मैडम ने बताया हमने किया, या फिर सर ने सिखाया हमने सीखा, वैसे नहीं. अच्छा, द पर्पस ऑफ समरी, समरी का जो पर्पस होता है इज टू गिव द रीडर क्लियर ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. मतलब क्लियरली बताओ. मतलब बहुत सारी चीजें बच्चों लोग कैसे हैं. See, I can be telling you there are thousands of people who are dying of hunger. People don't have housing. People are unemployed. अच्छा, people are facing the problem of malnutrition. ये सब चीजों को मैं एक छोटे से वर्ड से भी बोल सकता हूँ बच्चों लोग, that India is a poor country. If I say this, all other things are assumed to be there, children. So मैंने क्या किया बच्चों लोग? I'm giving you a clear picture of the original text. And most importantly, summary restates. Very important word here, children. Restates. Only the main points. जो चीजें जरूरी नहीं उसको हम लोग यहाँ पे कोई जगह नहीं दिले. Of a text. हो सकता है कोई लेक्चर और विदाउट गिविंग एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स के लिए कोई जगह नहीं है बच्चों लोग यहाँ पे. डिटेल्स नहीं देने का, डेट्स की जरूरत नहीं होती है, नंबर्स को इंक्लूड मत करना, स्टैटिस्टिक्स को भी एक्सक्लूड कर सकते हो आप यहाँ पे. हाँ, तो इसके बिना जो आप पॉइंट्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करोगे चिल्ड्रन, दैट इज समथिंग नोन एज समरी राइटिंग. अभी समरी राइटिंग करते वक्त आपको कुछ डूज और डोंट्स को फॉलो करना है बच्चों लोग. सो व्हाट आर दोस डूज एंड डोंट्स? ये डूज और डोंट्स है क्या? सो चिल्ड्रन, डूज एंड डोंट्स में द फर्स्ट वन, डूज में रीड एंड री रीड द पैसेज. मैं तो बोलता हूँ बच्चों लोग, रीड 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 एंड रीड अंटिल यू अंडरस्टैंड द पैसेज. पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जब तक समझ में नहीं आएगा बच्चों लोग तब तक आपको पैसेजेस पढ़ना पड़ेगा. अच्छा, इतनी बार रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन वी कैन से दैट यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज. सो
सो सपोज एग्जांपल के लिए सबसे पहला अपना स्टेप क्या रहेगा, दैट वी पीपल आर गोइंग टू रीड आउट द पैसेज। अच्छा, तो सपोज एग्जांपल जैसे ही आप ये सब पढ़ोगे तो सवाल ये आता है बच्चों लोग कि आपके दिमाग में कितना घुसा है वो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, देन रीड द इंस्ट्रक्शंस, मतलब समरी लिखने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ोगे। अच्छा, फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू समराइज, आपको एग्जैक्टली क्या समराइज करना है बच्चों लोग, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया टू प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। बच्चों जो भी पैराग्राफ लिखा गया, ये क्यों लिखा गया, ये किसने लिखा है, इसका पर्पस क्या है, इसका कंक्लूजन क्या होता है। चलो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे ना तो आपको मेन आइडिया पता चलेगा कि लाइक व्हाट दिस पैसेज इज ऑल अबाउट। अच्छा, देन चिल्ड्रन वेरी इंपॉर्टेंटली यू वांट टू फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अच्छा, लिंकर्स यूज करके, ओके, कंजंक्शंस यूज करके, डिस्कोर्स मार्कर्स यूज करके बच्चों लोग आप सेंटेंसेस को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। जैसे कि 2-3 सेंटेंसेस है, आप उसको फाइनली कंबाइन कर सकते हो बच्चों अच्छे कंजंक्शंस यूज करके। देन जो वर्ड्स रिडंडेंट है, अभी भी मैंने आपको बताया था, रिडंडेंट मतलब चलो वो वर्ड जिसकी हम लोग को जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है, उसके बिना भी मीनिंग कंप्लीट होता है, तो सेंटेंसेस में से वो वर्ड्स को आप क्या करोगे, हटा दोगे। ओमिट डिटेल्स, जैसे कि अभी आया था ना बच्चों लोग, क्या नंबर्स, डेट्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, ये सब चीजों को आप ओमिट करोगे, डोंट इंक्लूड देम चिल्ड्रन। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, इंटरप्रिटेशन नहीं देना, उसको हम लोग पैराफ्रेजिंग करके बोलते हैं। आपको क्या लगता है वो मत लिखो, यू नॉट योर इंटरप्रिटेशन चिल्ड्रन, व्हाट इज टोल्ड इन द पैराग्राफ दैट हैज टू बी नोटेड डाउन योर चिल्ड्रन। देन ये जैसे डूज थे बच्चों लोग, तो यहाँ पे कुछ डोंट्स भी दिए हुए हैं। व्हाट आर द डोंट्स, मतलब कौन कौन सी चीजों को आप यहाँ पे मतलब क्या नहीं करोगे, क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, अच्छा क्या ऐड करने का है, कौन सा कमेंट करने का बच्चों लोग। गिव एग्जांपल्स। एज एन एग्जांपल लेट अस टेक एन आर्टिकल फॉर समरी। तो चलो बच्चों लोग अभी हम लोग एक आर्टिकल को यहाँ पे समराइज करके देखने वाले हैं। ओके, आर्टिकल पढ़ते पढ़ते बच्चों लोग मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूं, तो आपको एंड तक पता चलेगा कि इस आर्टिकल को हम लोग किस तरीके से समराइज कर सकते हैं, और इसके जरिए बच्चों आपको भी थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, बट लेट्स सी। लर्निंग डिसेबल, चलो अभी एक नया वर्ड आप यहाँ पे सीख रहे हो बच्चों लोग, LD। जैसे बच्चों फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं तो उनको हम लोग कैसे हैंडीकैप करके नहीं बोलते, वी कॉल देम एज स्पेशल पीपल, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज फिजिकली चैलेंज पीपल। और डिफरेंटली एबल्ड, पहले उनको हम लोग क्या अपंग बोलते थे, अभी उनको क्या दिव्यांग करके बोला जाता है। दिव्य इज लाइक फॉर एग्जांपल के लिए गॉड गिफ्टेड। अभी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इट्स समथिंग रिलेटेड टू, इट्स अ काइंड ऑफ इनएबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। लेकिन फिर लर्निंग डिसेबल एक अम्ब्रेला टर्म है। व्हाट इज अम्ब्रेला टर्म चिल्ड्रन, कि उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आएंगे फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम। सो पढ़ाई करते हुए चलो जो बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं उसको हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं, लेकिन कॉमनली उसको क्या बोला जाता है। अभी हैंडीकैप मतलब बच्चों लोग क्या हो, इट कुड बी लाइक डफ भी होता है, डम भी होता है, या फिर एग्जांपल लाइक ऑर्थोपेडिक्स का भी प्रॉब्लम होता है बच्चों लोग, जहाँ पे पुली वगैरह, तो ये सब लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडीकैप। तो इट्स अम्ब्रेला वर्ड। व्हेन आई से कि लाइक लर्निंग डिसेबल, तो मुझे ये पता नहीं होता बच्चों कि उसको रीडिंग का प्रॉब्लम है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, अच्छा वो फॉर एग्जाम्पल जो सुनता है उसका ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबको मिला के एक वर्ड है हमारे पास, दैट इज LD। सो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसऑर्डर माइट बी लेबल्ड एज स्लो लर्नर्स। ऐसे बच्चों को हम लोग क्या बुलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्लो लर्नर्स, बट दे आर एज स्मार्ट एज एवरीवन एल्स। लेकिन हम सब लोगों को पता है कि वो उतने ही स्मार्ट होते हैं जितने कि हम लोग होते हैं। जैसे कि द बिगेस्ट लाइक थॉमस एडिसन, या फिर एग्जांपल फ्रैंकलिन रूजवेल्ट चिल्ड्रन, या फिर हेलन केलर, ऑल दिस पीपल दे हैड सम और द अदर डिसेबिलिटी, एंड मोस्ट ऑफ देम दे हैड लर्निंग डिसेबिलिटी, राइट? बट यू नो दे आर द ग्रेटेस्ट अचीवर्स ऑफ मैनकाइंड चिल्ड्रन। तो वो बाकी लोगों के जितने ही स्मार्ट होते हैं, बट किस चीज की जरूरत है बच्चों लोग, दे नीड टू बी टॉट इन अ प्रॉपर एनवायरमेंट विच इज कंडूसिव टू देयर लर्निंग स्पीड एंड लेवल। जैसे बच्चों लोग हम सब लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग जैसे अपना लर्निंग सिस्टम जो है बच्चों लोग, या फिर अपना
पढ़ाई का जो मेथड्स होते हैं वो सब में कैसे है कि सब लोगों को हम लोग बिठाते हैं और फिर बोलते हैं चलो मैथ्स पढ़ो। ये तो ऐसे हो गया चलो जैसे कि हम लोग 10 पेशेंट्स को ले रहे हैं, उनको एक रूम में बिठा रहे हैं, उनको पूछा तेरे को क्या हुआ है, टाइफाइड, तेरे को क्या हुआ, मलेरिया, तेरे को क्या हुआ है, ओके फॉर एग्जाम्पल फीवर, और फिर हम लोग बोलते ठीक है ये टैबलेट है, ये सब लोग खा लेना ठीक हो जाओगे। तो वैसे होता है बच्चों, जब एक क्लासरूम में हम लोग 50 बच्चों को बिठाते हैं और सब लोगों को एक ही चीज सिखाते रहते हैं, तो हर एक का स्पीड लेवल अलग होता है, हर एक का कॉम्प्रहेंशन लेवल रहता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सब लोग उसी तरीके से परफॉर्म करें ना। हाँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे हर एक बच्चे का लर्निंग का स्पीड अलग होता है, उनका लर्निंग का लेवल अलग होता है। चलो, तो उनको मैच करने वाले स्पीड से, उनको मैच करने वाले लेवल से, अच्छा फेवरेबल तरीके से अगर आप उनको पढ़ाओगे तो फिर हर एक बच्चा उतना ही स्मार्ट होता है जितने नॉर्मल बच्चे होते हैं। सो ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय पेरेंट्स, मतलब बहुत सालों से जब पेरेंट्स बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं एट होम एंड टीचर्स इन स्कूल कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वे अ चाइल्ड इज एबल टू लर्न। तो बच्चों घर पे पेरेंट्स, ओके, और उसके अलावा स्कूल में कौन, टीचर्स, ओके, ये सब लोग हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं किसके बारे में, बच्चे के बारे में, ओके, वो किस तरीके से सीख सकता है, ओके, एंड दे ऑल फंक्शन इन ऑल द वेज दैट ही शुड बी एबल टू एट हिज एज एंड हिज लेवल। तो एक्सपीरियंस से हम लोग सीख सकते हैं बच्चों ये सब चीजें। हाँ, बट देयर में बी सर्टेन अपरेंट प्रॉब्लम्स व्हाइल रीडिंग। आप सब लोगों को पता है बच्चों, कुछ लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होता है। सम पीपल हैव अ प्रॉब्लम व्हाइल लिसनिंग, सम पीपल दे स्टैमर व्हाइल स्पीकिंग, कुछ लोगों को बच्चों रीजनिंग करने को नहीं आता है। अच्छा, और कुछ लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है बच्चों मैथ्स, राइट। बचपन से हम लोग को बताया जाता है मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स पर हम लोग को पता नहीं था डिफिकल्ट था, बस ये पेरेंट्स हम लोग को बताते थे, फिर जिंदगी भर हम लोग यही सोचते कि लाइक मैथ्स डिफिकल्ट होता है। अच्छा बच्चों लोग, ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये ऐसे देख के पता नहीं चलते, दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। But it is important to, in order to clarify specific learning disorders and also rule out any other issue of affecting students' educational progress. लेकिन बच्चों में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बच्चों बहुत जरूरी होता है, ताकि उन प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग कुछ सोल्यूशन ढूंढ के उनको गाइड कर सके अपने आगे के करियर में। अच्छा, भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं चिल्ड्रन, जैसे कि सबका मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। एक होता है डिसलेक्सिया, then we got dysgraphia, children we also have got dyscalculia, okay, and it's like specific रीडिंग डिसेबिलिटी होता है बच्चों लोग। कुछ लोग साउंड को प्रोसेस नहीं कर पाते तो उसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। या फिर एग्जांपल की लाइक दिट्स आल्सो समटाइम्स रिफर टू एज सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इट अफेक्ट्स द साउंड दैट ट्रेवल्स अनइम्पेडेड थ्रू द ईयर, मतलब आपके कान में से अंदर आवाज आता है लेकिन फिर वो आपका ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, सो प्रोसेस और इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। अच्छा, जिनको भी चलो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज सटल डिफरेंस बिटवीन साउंड्स एंड वर्ड्स। तो कुछ साउंड्स होते हैं चलो, कुछ वर्ड्स होते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अच्छा, अब ये जो अलग अलग वर्ड्स है बच्चों, ये सबका मीनिंग देखो जरा। डिसकैलकुलेरिया, ये क्या होता है बच्चों कि आप नंबर्स को नहीं समझ पाओगे और आपको क्या पढ़ने में प्रॉब्लम आएगा बच्चों, मैथ्स के साइंस और सिंबल्स। डिसग्राफिया का मतलब क्या होता है बच्चों, चिल्ड्रन इट्स लाइक हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम होता है, ओके, फाइन मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स लाइक फॉर एग्जांपल अपने नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों लोग, रिफ्लेक्स सिस्टम। डिसलेक्सिया तो आपने तारे जमीन पर में देखा हुआ है, मतलब आपका रीडिंग, ओके, या फिर लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल्स नहीं होते हैं। आपको पता है बच्चों, जब आप वो ईशान को बोलते हैं कि लाइक सी लिखो, तो वो सी कैसे लिखता है बच्चों लोग, ऐसे। आप उसको बोलोगे डी लिखो, तो ये क्या होता है, डी। अच्छा, suppose for example, if you tell him to write God, अच्छा, then he might end up writing what, dog। तो वो लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आप उसको बोलोगे ठीक है, for example, children this is M, हाँ, तो he might end up writing like this also, right। जब आप उसको नॉर्मल बी बताते हो बच्चों लोग, हाँ, तो उसका बी थोड़ा अलग हो सकता है, सब डांसिंग लेटर्स दिखाई देते हैं ना, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं हम लोग। अच्छा, देन चिल्ड्रन वी ऑल्सो हैव लाइक डिकोडिंग, ओके, रिकॉल, या फिर एग्जांपल राइटिंग का प्रॉब्लम्स, और वो लोग थोड़े स्टैमर भी करते हैं। अच्छा, मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, या फिर अरिथमेटिक, दे ओवरलैप एंड बिल्ड ऑन द सेम ब्रेन कैपेबिलिटीज, ओके।
तो ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल की लाइक ये सब ब्रेन से रिलेटेड होता है. इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पीपल कैन बी डायग्नोज्ड विद मोर देन वन लर्निंग डिसेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज अंडरलाइंस लर्निंग टू स्पीक. जिनको लैंग्वेज समझता है वो लोग बात भी कर सकते हैं. Any disorder that hinders the disability to understand language will also interfere with the development of speech. अगर कोई बच्चा लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा है तो फिर आपको पता है आगे जाके वो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा. जो लोग सुन नहीं सकते वो चलो उनको बोलने में भी प्रॉब्लम होता है, आपने देखा रहेगा. क्यों? क्योंकि वर्ड्स उनको पता नहीं होते ना. एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर मतलब ये वो बच्चे लोग होते हैं जो इनको ध्यान है. आपने कभी कभी कुछ बच्चों को देखा रहेगा, आप उनको कितना भी बोलो कितना भी डांटो वो वापस से है ना 2 मिनट में वापस अपने दुनिया में बिजी हो जाते हैं. स्कूल्स में आपने देखा रहेगा रेस्टलेस रहते हैं, मतलब वो लोग कभी शांत बैठ के एक ही चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, मतलब वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते बच्चे लोग. तो आपने देखा ये सब के सब जो डिसेबिलिटीज है चिल्ड्रन, दे आर ऑल रिलेटेड टू व्हाट आर नोन एज लर्निंग डिसेबिलिटीज. ओके, so there are many other learning disabilities that can be identified in the normal classrooms at school level. तो कभी कभी स्कूल में कुछ चीजें हम लोग को पता चल जाती है. अच्छा, और ऐसे प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए बच्चों अलग अलग मेथड्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, और जल्दी जितना आप उसको डायग्नोज करोगे उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा. Now, inclusion in education is one of the ways to solve the problem of children with learning disorder. In a mixed ability classroom with effective teaching method and the conducive environment, a child with learning disability can progress in not only education, मतलब ना ही सिर्फ वो education but social impact. तो आप उनको सबको अलग करके ला लो, इसलिए हर एक स्कूल में ऐसे थोड़े लर्निंग डिसेबल बच्चों को भी रखा जाता है कि नॉर्मल बच्चों के साथ में रह के वो लोग भी थोड़े से नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So they are actually called as inclusive classrooms. So then the purpose will be achieved. Unfortunately, our country is less open to inclusive learning for children with LD. ऐसे बच्चों को हम लोग नॉर्मल स्कूल्स में, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिट नहीं कराते. Unless handled efficiently, these disorders often transform to conditions like anxiety. अच्छा, कुछ बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं. तो पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर्स या फिर अदर स्टेक होल्डर्स जो एजुकेशन में इन्वॉल्व है, दे कैन इंसिस्ट ऑन द नीड टू अपलिफ्ट द चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी. They need to be handled carefully in their own space. They need love. थोड़ा प्यार दिखाना पड़ता है, encourage करना पड़ता है उन लोगों को, moral support की जरूरत होती है. हाँ, then they can emerge with great self confidence. उनके अंदर क्या आएगा बच्चों? self confidence और determination. अच्छा, एक आर्टिकल पढ़ा बच्चों हम लोगों ने जिसका मीनिंग हम लोग तो ऐसे भी कुछ नहीं, लेकिन फिर आपने समझ लिया कि लाइक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में. अभी सवाल आता है कि इसका अगर हम लोग को समरी लिखना है तो उसके स्टेप्स क्या आते हैं. तो बच्चों लोग यहाँ पे कुछ स्टेप्स है. पहला, रीड द आर्टिकल ट्वाइस. हमने तो एक ही बार पढ़ के समझ लिया उसको, 2 बार नहीं पढ़ेंगे हम लोग. तो 2 बार आप आर्टिकल पढ़ोगे. अभी मैंने तुम लोगों को समझाया इसलिए फटाक से समझ में आता है, बट यू कुड हैव टू रीड इट ट्वाइस. अच्छा, ये आर्टिकल क्यों लिखा गया, उसके पर्पस के आप क्वेश्चंस पूछोगे खुद को. अच्छा, उसके साथ साथ और एक काम क्या करना है, मेन आइडिया क्या है, ऑब्वियसली लर्निंग डिसेबल ना. अच्छा, फिर आप उसका एक पहला ड्राफ्ट लिखोगे, रफ. अच्छा, फिर आप उसको ड्राफ्ट को क्या करोगे, एडिट करोगे, करेक्शन करने का बच्चों, मॉडिफाई करने का उसको, और फिर आप क्या लिखोगे, फाइनल ड्राफ्ट. और हमारे लिए इन्होंने यहाँ पे फाइनल ड्राफ्ट रेडी करके दिया हुआ. मैं आपको सिखाऊंगा कैसे किया जाता है, लेकिन चलो आप देख सकते हैं कि लाइक इतना बड़ा जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसको हम लोग इतने में से भी समझ सकते हैं. क्या देखो कि लाइक LD दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, ये कौन सा वर्ड था बच्चों? इट्स अम्ब्रेला टर्म फॉर लर्निंग प्रॉब्लम्स लाइक रीडिंग. ओके, राइटिंग का भी प्रॉब्लम था, लिसनिंग का प्रॉब्लम था बच्चों लोग, स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, आप रीजनिंग नहीं कर पाओगे, मैथ्स. अच्छा, एंड अदर फिजिकल और मोटर डिफिकल्टीज दैट वी हैव. मोटर मतलब बच्चों लोग अपने बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जैसे कि अभी मेरे आंख के सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट है, फटक से मेरा आंख बंद होता है बच्चों लोग. लाइक यू नो मोटर डिफिकल्टी चिल्ड्रन, इफ आई एम नॉट एबल टू गेस आउट समथिंग लाइक नो. यस. अच्छा, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है दे नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड इन्वेस्टिगेटेड. अच्छा, एक बच्चे के अंदर डायग्नोसिस हो सकता है बच्चों लोग मोर देन 1 लर्निंग डिसेबिलिटी का. किसका? मोर देन 1 लर्निंग डिसेबिलिटी. कुछ नाम दिया बच्चों लोग, डिसलेक्सिया, क्या था ये तो मैंने आपको बोला, तारे जमीन पर क्वेश्चन, डिसग्राफिया बच्चों लोग, राइटिंग का प्रॉब्लम, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब साउंड आता है लेकिन आप समझ नहीं पाते हो. अच्छा,
ये सब चीजों के साथ डील करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो रेगुलर क्लासरूम में भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक मेथड क्या आता है बच्चों लोग, इंक्लूजन, मतलब ऐसे बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाओ। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन may vary but it has a positive effect in the learning disability। बच्चों को बहुत फायदा होता है बच्चों इस चीज का। So though the idea of inclusion is not popular in our country, हमारे देश में बच्चों ऐसे लोगों को हम लोग बीच में नहीं बर्दाश्त करते हैं ना, so it can prove to be useful to handle such children and along with the methods and techniques the children also need। ऐसे बच्चों को किस चीज की जरूरत होती है बच्चों लोग, एनकरेजमेंट, आप उनको मॉरल सपोर्ट दोगे, अच्छा, टू प्रोग्रेस, ताकि इनके अंदर क्या बना रहे हैं बच्चों लोग, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। अभी आप देखो बच्चों लोग, अंदर बहुत सारे नाम थे, हमने उसको लोगों को इंक्लूड, मतलब कुछ लोगों को इंक्लूड किया है, और फिर ओवरऑल तो मेरे को समझ में आया कि पैराग्राफ क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी होता है क्या है बच्चों लोग, किस प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं उसके लिए। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक ही मेथड होता है इंक्लूजन। अच्छा, इंक्लूजन एक बहुत अच्छा मेथड है बच्चों लोग लर्निंग डिसेबल के लिए। हाँ, लेकिन हमारे देश में वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे बच्चों को अगर हम लोग थोड़ा सा प्यार से हैंडल करें, अच्छा, और कुछ टेक्निक्स अगर हम लोग अप्लाई करके ऐसे बच्चों को एनकरेज करेंगे लाइक प्रोग्रेस करने के लिए, तो ये बच्चे लोग बहुत सारा कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन लेके अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। हो गया बच्चों लोग, दिस इज summary writing, right? So children, I just give you a overview of what exactly is the meaning of summary writing, और भी कुछ एग्जाम्पल्स जब मैं आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि समरी राइटिंग एग्जैक्टली हम लोग कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में अगर उन्होंने एक पैराग्राफ दिया और बोला कि लाइक इसको समराइज करो, तो आप बहुत आसानी से बच्चों लोग समराइज कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल एंड आई विल टीच यू हाउ टू समराइज चिल्ड्रन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे विद द फर्स्ट chapter or the first section from the third unit that we are studying children, that is writing skills, that is related to summary writing. So thank you everyone children, see you in the next lecture. Till then, bye everyone.